جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہاں پر دیکھیں میں نے بک جو اوریجنل بک ہے جہاں سے میں نے مٹیریل لیا تھا اس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. دیکھیے یہ آیت نمبر 147 ہی لکھا ہوا ہے یہاں پہ، تو یہ چیک کر لیتے ہیں. میں چیک کر لوں گی اس کو. قرآن مجید میں دو جی ایسے ٹیچر آپ خود بھی چیک کیجیے، آیت نمبر 146 ہے سورہ آل عمران کی، آپ کے سامنے چیک کر پارہ نمبر 4 ہے نا یہ. آیت نمبر 146 ہے سورہ آل عمران پارہ نمبر 4. ٹیچر میرے پاس بھی بک ہے اور میری بک میں 146 ہی لکھا ہوا ہے. میرے پاس بھی 146. آپ کے پاس بلو والی بک ہے؟ جی ہاں، پرپل بلو، ہاں اسی طرح کا شیڈ ہے. صحیح ہے، یہ اولڈ ایڈیشن ہے نا تو اس میں شاید نمبر غلط لکھا ہوگا. ٹھیک ہے بار بار سلطانہ پہ جا رہا ہے. بک کی کوئی تصویر بھی شیئر کر دے، ہم بھی منگوا لیں. بک آپ نہ ہی منگوائیں کیونکہ میں نے تو ڈفرینٹ 3-4 بک سے پڑھا ہے. یہ رہا 146 ہی ہے. ٹھیک ہے وقعین. ٹھیک ہے صحیح ہے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں 146 ہی ہے. جزاک اللہ خیر. اچھا جی اس بک پہ اور پھر واپس آ جائیے، ہم اس کو دیکھ لیتے میں ہیں. نے سب سے پہلے بتایا تھا. مبارک ہو آپ کو. کیا نام ہے آپ کا؟ میں نے نظر نہیں آیا. سوکھا نام ہے، ثواب زیادہ ملے گا نا اس لیے کہہ رہی ہوں. اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے الحمدللہ. اچھا جی یہ میں نے مخصوص کلمات آپ کو پڑھائے. اس کے بعد ہمارا ٹاپک ہے کہ کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر الف لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا. صحیح ہے، بعض مقامات پر الف جو ہے مرسوم یعنی کہ لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا. ایسے کون سے الفاظ ہیں؟ وہ کلمات جن کا الف وقف کی صورت میں صرف وقف کی صورت میں پڑھا جاتا ہے، وصل میں نہیں پڑھا جاتا. لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن پڑھتے نہیں ہیں. جیسے لاکنہ، اور آپ کیا دیکھتے ہیں اس کے اندر؟ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک سرکل سا بنا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور سرکل بھی کس قسم کا بنا ہوا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا اوول شیپ کا بنا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاؤں. جیسے یہ جو لاکنہ لکھا ہوا ہے رول کے حساب سے تو یہ الف مدہ ہو رہا ہے، لیکن دیکھیے سرکل کی وجہ سے. یہ دیکھیے اس کو میں بہت تھوڑا سا بڑا کروں. ایک منٹ. یہ دیکھیے لاکنہ نظر آیا آپ کو؟ یہ اوول ہے. دیکھیے یہ اوول شیپ ہے لاکنہ. جی قرآن میں بھی ہے. یہ قرآن میں بھی جی لکھا ہوا ہوتا ہے نا اس طرح سے. جی جی اچھا انا جو لفظ ہے نا اس کے اوپر سرکل نہیں بنا ہوا ہوتا، لیکن یہ سرکل اس سرکل نہیں آئی مین اوول جو ہے یہ اسی کے وصف ہوتا ہے. قرآن مجید میں جہاں پر بھی انا لفظ آئے گا نا اس کا الف آپ وصل میں نہیں پڑھیں. اس کا وصل صرف اس کا الف جو ہے وہ صرف وقف کی صورت میں، جیسے کہ اگر فرض کریں کہ میری سانس ٹوٹ جاتی ہے پیچھے سے پڑھتے ہوئے آتے آتے اور میں انا پہ وقف کر رہی ہوں تو پھر میں انا کر کے وقف کروں. ٹھیک ہے الف مدہ پڑھ کے. لیکن اگر میں ملا کے پڑھ رہی ہوں تو پڑھوں گی قال انا خیر منہ. ٹھیک ہے اس پہ یہ سرکل نہیں بنا ہوا ہوتا قرآن مجید میں، لیکن باقی الف پہ بنا ہوا ہوتا ہے. لاکنہ ہے اور جتنے بھی لفظ میں نے آپ کو اس پہ دکھاؤں گی. یہ دیکھیے کہاں گیا وہ لفظ؟ یہ رہا. کون کون سے ہیں؟ 7 کلمات ہیں. لاکنہ، الذنون، الرسولہ، سلاسلہ، قواریرہ. اور یہ پہلا ہے، پہلا قواریرہ. صحیح ہے، یعنی کہ یہ جو سورۃ دہر کی جو آیت ہے اس میں دو جگہ پہ قواریرہ آتا ہے. سورۃ دہر کی نکالیں ذرا. سورۃ دہر کی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5. یس میم، قواریرہ 2 دفعہ آیا ہے. پہلے قواریرہ میں سرکل ہے اور دوسرے میں نہیں ہے. ہاں تو جو پہلا قواریرہ ہے اس کا جو الف ہے وہ آپ وقف کی صورت میں پڑھیں گے، لیکن اگر آپ اسے ملا کے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ قواریرہ جلدی سے کر کے آگے صرف زبر پڑھتے ہوئے چلے جائیں. سمجھ آئی؟
वैसे तो हम वहाँ वक्फ करेंगे क्योंकि आयत का निशान बना हुआ है, ठीक है, इसके फौरन बाद आयत का निशान है और हम उम्मन आयतों को फॉलो करते हैं, तो हम इस पे वक्फ करते हुए हम इसका अलिफ पढ़ेंगे। सर कवारीरा तो दहार में तो ये है सलासिला, सलासिला आयत नंबर 4 में। मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको ताकि सूरह दहार आयत सलासिला नंबर भी 4, दहार में है, आयत नंबर कवारीरा भी 15 दहार में। में, दोनों दोनों दहार भी सूरह है। दहार में। आयत नंबर दहार 4 को में नहीं है। एक मिस आयत नंबर 4 और 5 नहीं है उसे। हाँ वो 4 और 5 तो नहीं है। 15 होगी फिर। 15 है, आयत 15 है नंबर ना, 15 है। हाँ वो 15 नहीं कवारीरा है, 15 में है। ठीक है 15 में, देखिए 15 में है। जी जी है। जी है जी। और 16 के शुरू में। अच्छा, सूरह दहर के आगे पीछे कौन सी सूरत है? सूरह कयामा, सूरह मुद्दस्सिर कयामा पहले, और जी सूरह सूरह कयामा मुरसलात। और सूरह मुरसलात 29 पारे। सूरह कयामा और सूरह मुरसलात दरमियान में दहार है। आयत नंबर 4 में तो सलासिला है और 15 के आखिर और 16 के शुरू में अच्छा मैं कवारीरा। बहुत ऊपर चला गया। ये रहा, सूरह दहर को सूरह इंसान भी कहते हैं और आयत नंबर 4 जो है वो ये रहा सलासिला, ठीक है। और जो आयत नंबर 15 है 15 का एंड 16 का स्टार्ट। जी, ये कवारीरा, ये 15 का एंड और ये 16 का स्टार्ट। पहला कवारीरा ये वाला है, दूसरा कवारीरा ये वाला है। दोनों के अलिफ के ऊपर आपने देखे ओवल शेप मौजूद है और इस वाले पहले वाले पर यह वाला रूल अप्लाई होगा कि इसका वक्फ में तो अलिफ पढ़ा जाएगा लेकिन वसल में नहीं अप्लाई होगा, और इसका भी वक्फ में पढ़ा जाएगा वसल में नहीं। अब आप पहले ही लफ्ज पे तो वक्फ करेंगे नहीं, इसको आप वसल ही करेंगे। कवारीरा मिन फिद्दतिन क़द्दरूहा तक़दीरा, ठीक है, इस तरह पढ़ेंगे। अब आते वापस हम अपने उसमें, जब 15 का एंड करेंगे कवारीरा तो अलिफ रा पढ़ेंगे, से या मद्दा है। अलिफ पढ़ेंगे। जल्दी पढ़ेंगे। क्यों? या मद्दा तो पढ़ेंगे, अलिफ अलिफ की बात हो रही है ना। वक्फ कर रहे हैं ना आप यहाँ पे। तो कैसे पढ़ेंगे? कवारीरा। कवारीरा, कवारीरा, जैसे आप अलिफ मद्दा पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे। वक्फ में तो पढ़ना है ये अलिफ भाई। ये नहीं कलिमात की लेकिन बात देखें, वक्त से पहले या वो मद्दा है तो उसको कलिमात, कैसे पढ़ेंगे? या मद्दा तो पढ़ेंगे जैसे पढ़ते हैं। इसके ऊपर जज़म नहीं लिखा हुआ, ये आसमानी मुसहफ है ना, इसके या मद्दा पे जज़म नहीं लिखा होता। सही। मिस इसको कवारीर करके नहीं वक्फ करेंगे? नहीं, क्यों करेंगे? देखिए ना, वो कलिमात जिनका अलिफ सिर्फ वक्फ में ही पढ़ा जाता है, तो कवारीरा करके। मेरा पॉइंट ये है जब सेकंड लास्ट पोजीशन पे अलिफ या वाव मद्दा होता है तो उसको 3 अलिफ के बराबर खींचते हैं। कवारीरा तो री को कितना खींचेंगे? या मद्दा को। आता है दरवाजे में, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा हाँ जी, या आप आगे आपको समझ। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? वअक्वाबिन कानत क़वारीरा, क्योंकि अलिफ को हमने वक्फ की सूरत में तो पढ़ना है। अगर मैं मिला के पढ़ूंगी, जैसे मैं फर्ज करें मैं मिला के पढ़ती हूँ, वअक्वाबिन कानत क़वारीरा क़वारीरा, यानी पहले कवारीरा, इस वाले पे मैंने वक्फ नहीं किया तो अलिफ नहीं पढ़ा, और इस पे वक्फ किया तो इसका अलिफ पढ़ लिया। फर्ज करें कि मैं यहाँ पर, अब यहाँ पे मैंने वक्फ कर लिया, ठीक है, अब मैं यहीं से उठाऊंगी। जब मैं यहाँ से उठाऊंगी तो इसका वसल में नहीं पढ़ूंगी अलिफ। क़वारीरा मिन फ़िद्दतिन क़द्दरूहा तक़दीरा, समझ आई अब? जी बस ये समझ में आ गया है, लेकिन हम क्यों इसको खींचेंगे नहीं? क्योंकि ये हमको मुतफरिकात पढ़ रहे हैं ना भाई। देखें कि इसका अलिफ लिखा हुआ है लेकिन पढ़ना नहीं है, और ये जीरो आपको बताएगा कि आपने इसका अलिफ नहीं पढ़ा। सही है? बस ये रूल्स में आ जाएंगे कि रूल है ये इसका। रूल ये लेकिन बस वक्त की बता रहे सूरत हैं, में जब पढ़ना है। कुरान जब ये लिखा गया ना, सहाबा ने मिलके सबने लिखा, फिर बाद में जब ये बाद में ये तो कुछ मिस्टेक्स निकाली गई कि इसके अंदर अलिफ नहीं आना चाहिए था, ये सिर्फ जबर था,
تو انہوں نے اس کے ٹیکسٹ کو چینج نہیں کیا ان کا احترام کرتے ہوئے. صحابہ اور ان سارے لوگوں کا جنہوں نے اس کو کمپائل کیا تھا اس کا احترام کرتے ہوئے انہوں نے اس کو چینج نہیں کیا, بلکہ اس کے اوپر تھوڑی سی کچھ علامات لگا دی کہ اس کو اس طرح سے پڑھ لیں, لیکن ان کا احترام کرتے ہوئے کہ اس کے اندر یہ غلطیاں ہیں یا ہم اس کو اس طرح سے کرنا چاہیے تھا, یہ وہ انہوں نے اس کے اندر کچھ بھی کوئی تبدیلی نہیں کی. جیسا مصحف عثمانی لکھا گیا تھا اس کو ویسے ہی رہنے دیا, بس اس میں کچھ علامات لگا کر جو ہے وہ رولز بتا دیے گا کہ اس طرح سے پڑھیں. آپ سمجھ آئی بات؟ جی مس. ٹھیک ہے. تو لاکنہ اصل میں ان کی ذات زبر کے ساتھ تھا لیکن الف لگا ہوا تھا اس میں. اب الف لگا ہوا تھا, اب اجمی کو تو نہیں پتا نا, اب ہم جیسے لوگوں کو تو نہیں پتا ہوگا کہ اس کے میننگ میں کیا فرق پڑ رہا ہے. عربی لوگوں کو پتا چلتا ہے. اب دیکھیں فرض کریں اردو کی کسی بھی کتاب میں کوئی غلطی ہوگی, ہم پڑھتے ہی بتا دیں گے نا کس میں غلطی ہے, کیونکہ ہماری اپنی زبان ہے, ہمیں سمجھ میں آ جائے گی. لیکن اگر کوئی نان اردو بندہ ہے, فرض کریں کوئی برٹش ہے, اس کو اردو نہیں آتی اور وہ پڑھنا, وہ تہجی حروف تہجی کو جیسے ہم پڑھتے ہیں بچوں کو پڑھاتے ہیں ہجے کرا کے, تو وہ تو ویسے ہی پڑھ لے گا, غلط کو بھی پڑھ لے گا. سمجھ آ رہی نا بات؟ ہمیں تو مطلب بھی سمجھ نہیں آتا جی جی. اس وجہ سے. اس یہ وقت بالروم کے طریقے سے پڑھا جا رہا ہے. نہیں اس کو ہم پڑھ ہی نہیں رہے, اس الف کو ہم پڑھ ہی نہیں رہے. جب لیکن دیکھیں وقف تو کر نہیں رہے نا اس پہ ہم, ابھی جب ہم ملا کے پڑھتے ہیں تب تو ہم وقف نہیں کرتے. صحیح جب ہم وقف کریں گے تو پھر پڑھیں گے لاکن, تب تو الف پڑھیں گے. یہ 7 وہ کلمات ہیں جن کی الف کو وقف میں پڑھا جائے گا لیکن وصل میں نہیں پڑھا جائے گا, اور اس کی شکل جو ہے وہ اوول شیپ کی, یعنی کہ اردو کے حساب سے بیزوی شکل کی ہوگی, اوول ہوگا. اور یہ حروف آپ نے یہ ورڈز آپ نے یاد کرنے 7. لیکن اور یاد کس طرح کریں گے, ایک منٹ پہلے, اور یاد کس طرح کریں گے اس کو بار بار پڑھیں گے. لیکن الظنون الرسول سلاسل, یعنی ایک ملاتے جائیں گے اور پڑھتے جائیں گے. اس طرح پڑھنے سے آپ کو یہ یاد ہو جائیں گے. یہ یاد کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں. لیکن الظنون الرسول سلاسل قواریر پہلا, لیکن الظنون الرسول سلاسل قواریر پہلا انا. ٹھیک ہے, اس طرح پڑھ کے ایک دوسرے کو بھی سنائیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے پڑھیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. اب یہ انا کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ انا لفظ جہاں سورہ یوسف میں انہوں نے دیا ہے اور لکھا ہوا ہے کہ جہاں بھی آئے, انا لفظ منفرد کلمے کے طور پہ قرآن مجید میں آتا ہے اور اس پر یہ علامت پائی نہیں جاتی, لیکن اس کا الف بھی اس قاعدے میں داخل ہے. بات سمجھ آ گئی کہ اس میں سے یہ علامت تو نہیں پائی جاتی لیکن یہ اس کا الف بھی اسی قاعدے میں, اسی رول میں داخل ہے. اس کو وقف میں پڑھیں گے, وصل میں نہیں پڑھیں. آپ پوچھیں کیا سوال کریں گے؟ اس میں تو 6 ہے, 7 تو نہیں ہے مس. یس میم یہاں پر نمبرنگ غلط کی ہوئی ہے, نمبر 1 غلط 2 ہوا کے بعد ہوا 3 ہے, نہیں لکھا ہے. 3 نہیں بک لکھا میں گیا. بڑے مسئلے ہو گئے. 1 2 3 4 5 6 الرسولہ پہ بس 3 نہیں لکھا ہوا, باقی صحیح تو ہے. 4 کہاں ہے؟ 4 نہیں ہے. تو 7 ہے 6. سبیلا میری بک پہ لکھا ہوا, میں نے کھولی ہے نا بک. یہ دیکھیں 7 ہے. پکچر ڈال دے بہن پلیز. سبیلا بھی ہے. جی ڈال دیں گے. ٹھیک ہے تو سبیلا پہ لام الف پہ ہے سرکل. جی, الف کے اوپر اس والے. ٹھیک ہے, اچھا ٹیچر, یہ جو سلاسلہ ہے تو جیسے لام الف پہ ہے سرکل تو ہم اس کو بالکل پڑی حرکت کی طرح نکال لیں گے, سلاسلہ. ہاں صرف زبر پڑے. اچھا, اب جیسے ہے لیکن, جیسے نون مشدد کے بعد فوراً نون کو, دوسرے نون کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن ایسے. لا کو لمبا کریں پہلے, لیکن. اس کو کیا ہے, اچھا لیکن ایسے فوراً چھوڑ دیں گے. ہاں جی صحیح صحیح. صحیح ہے. اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ آپ ضرور ڈال کہیں دیجیے گا. اس چارٹ کو آپ ایسے رہنا دیں, اس چارٹ کو آپ رہنا کٹ کر. آپ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کنفیوز ہو رہا ہے. 2 کلمات ایسے ہیں, یا میں پڑھا رہی تھی نا جب میں نے درمیان میں بھی میٹنگ اینڈ کی تھی, 2 کلمات ایسے ہیں جن کو وقف کی صورت میں 2 طرح سے پڑھا جاتا ہے. فما آتانی, نون کے نیچے زیر ہے, جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس کو حذف یا اور اثبات یا کے ساتھ پڑھتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا کہ پہلے تو یہ نکال لیں آپ, نمل سورۃ نمل میں آیت نمبر 36 ہے. آیا نمبر یہ 16 18.
मेरे नमल सूरह नमल पारा नंबर है आपका 20-19। 19। 27 नंबर की आयत है, 27 नंबर की सूरत है ये, और आयत नंबर 36। ये देखिए, इसके साथ देखिए इसमें ना छोटा सा या बना हुआ है, नजर आ रहा है आपको? फमा आतानी यल्लाहु, ये हर्फ सगीरा बना हुआ है यहाँ पर। मैंने आपको ये पिछली दफा बताए थे ना हर्फ सगीरा। ये कौन बताता? सूरह नमल आयत आयत नंबर 36 है ये। अब यहाँ देखिए, फमा आतानी या, अब फर्ज करें किसी ने यहाँ पे वक्फ करना हो, किसी ने पढ़ना हो फलम्मा जाअ सुलैमान क़ाल अतुमिद्दूननी बिमालिम फमा आतान, तो कोई यहाँ पर हज़फ या यानी कि इस या को नहीं पढ़ेगा, नून खाली नून पर साकिन कर देगा, या फिर फमा आतानी ऐसे करके वक्फ किया जा सकता है, यानी हज़फ या और असबात या इन दोनों के साथ वक्फ किया जा सकता है। क्योंकि ये हरफ सगीरा है तो इसको इन्होंने वक्फ में बिल्कुल भी निकाल सकते हैं, और क्योंकि ये मौजूद है तो इसको इसी को साकिन करके इसके साथ वक्फ किया जा सकता है। समझ आई ये बात? मिस तो यहाँ पे जब वो वक्फ करेंगे आतान करके, तो फिर यहाँ पे फिर उसको अदा करके भी तो पढ़ना होगा हाँ, ना? तो यादा जब करेंगे तब तो आपने या पढ़ना ही है लाजमी। फिर पढ़ेंगे फमा आतानी अल्लाहु खैरुम मिम्मा, ठीक है? अच्छा, और अगर जी। सांस टूटता है आतान करके छोड़ देंगे, फिर अल्लाह को कैसे पढ़ेंगे? क्यों? फिर आप मिला के पढ़ेंगी ना पीछे से, आप खाली अल्लाह थोड़ी अच्छा पढ़ेंगी, आपने दरमियान में जब अच्छा भी वक्त अच्छा, करना है तो आपने यादा करना है। मिला के पढ़ेंगे तो या को मिलाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नून पे साकिन करके दोबारा से पीछे से उठाएंगे। भाई यहाँ पर मैं वक्फ के दो आप लोग ना बातें ज्यादा करते हैं, सुनते कम है। फमा आतान जो है इसको दो तरह से वक्फ किया जा सकता है। अगर किसी को इस पर वक्फ करने की सूरत हाल पेश आ जाती है तो वो किस तरह वक्फ करेगा, क्योंकि परेशान हो जाएगा ना छोटी या देखकर, तो एक छोटा सा या बना हुआ है, तो वो क्या करेगा कि या तो वो नून को साकिन करके इस तरह पढ़ेगा फमा आतान, या फिर वो ऐसे भी पढ़ सकता है फमा आतानी, ठीक है? फमा आतानी, या को साकिन कर देगा, जो आखिरी हर्फ होता है उसको साकिन करते हैं ना, तो दोनों सूरतों में पढ़ा जा सकता है। फिर अब यहाँ देखेंगे सलासिला, ये सूरह दहर का वही वाला वर्ड है जिसके अलिफ को देखा था हमने, तो वहां पर हमने ये बात की थी कि अलिफ जो है वो उसका वक्फ में पढ़ा जाएगा, वसल में नहीं। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर फर्ज करें इस पे वक्फ करना हो तो उसकी भी दो सूरतें हैं, और वो क्या है कि हज़फ अलिफ और असबात अलिफ के साथ दोनों सूरतें जायज़ है। अगर कोई सलासिल करके वक्फ करना चाहे तो कर सकता है, और सलासिला करके वक्फ करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ इसी सलासिला के साथ है और बाकी सारे अलिफात के साथ नहीं, ठीक है? तो ये बात समझ आ गई अब आपको? समझ आ गई? ठीक है, टीचर आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी मिस। अब फिर देखिए वो कलिमात जिनका अलिफ वक्फन वसलन नहीं पढ़ा जाएगा, वक्फ में भी नहीं पढ़ा जाएगा, वसल में भी नहीं पढ़ा जाएगा, और ये सारे कलिमात कितने हैं? 22। अब इसको भी आपने याद करना है, रट्टा लगाना है। औ याफुआ अन तबुआ लिततलुआ लियरबुआ लियबलुआ नबलुआ समूदा लन नदुआ कवारीरा, दूसरा देख रहे हैं आप, वक्फ की सूरत में भी नहीं पढ़ा जाएगा। ला ला इलल्लाहि वला औदउ वला औला औला अतबहन्नहु, ये वाला ला के साथ जो अलिफ लगा हुआ है ना, ये नहीं पढ़ना। ला इलल्लाहि, ये अलाम के साथ अलिफ। अफा इन, ये तो आपको पता है कि ये नहीं पढ़ते आप, अफा इन नहीं करते, इसके ऊपर जीरो लगा हुआ होता है, और इसके ऊपर जो है ना सर्कल बना हुआ होता है। ये वो अलिफात जिनको बिल्कुल नहीं पढ़ना, उनके ऊपर जीरो पूरा सर्कल शेप होता है, और जो अलिफ वक्फ में पढ़ना है उनका जो सर्कल होता है वो ओवल शेप होता है, ठीक है? और इनके नाम हैं, वो अभी मैं बताती हूँ। अफा इन मलाइही मलाइहिम लिशैइन
मिन नबाई, वजीआ, मिअतुन और मिअतैनी और लअंतुम अशद्दु, ये लाम का ज़बर, ये नहीं पढ़ा। अच्छा इसका जो नाम है वो देखिए, टीचर ये कैसे आएगा? जी ये आएगा। अब देखिए पहली अलामत जो कि कुरान मजीद में होती है गोल सिफर, जो अभी मैं बता रही थी आपको। देखिए जैसे ये उलाइका का अवाव के ऊपर भी होती है गोल सिफर, बी आई दिन, ये रही गोल सिफर। ये सिर्फ अलिफ पे नहीं होती है और कहीं पे भी होती है ये अलामत गोल, बिल्कुल गोल। इसको कहते हैं अस्सिफरुल मुस्तदीर, गोल सिफर। मुस्तदीर का माना होता है अरबी जबान में गोल, ठीक है। यह अलामत बाज़ औक़ात 3 हरूफ यानी कि अलिफ, वाव और या के ऊपर पाई जाती है। अलिफ, वाव और या। अलिफ अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, और कहीं कहीं या पर भी होती है और वाव पर भी होती है, जो नहीं पढ़े जाती, ठीक है। वो चार्ट जो हम पढ़ रहे थे वो अलिफ का पढ़ रहे थे, यहाँ पर वाव और या भी दिखाया है इन्होंने कि इस तरह सूरत हाल में वाव और या भी होता है। आप देखते हैं ना कि उलाइका को आप वाव को नहीं पढ़ते हैं। जो हमारा पाकिस्तानी मुसहफ होता है ना, उस पे ये जीरो वाली अलामत नहीं बनी हुई होती वाव पर और या पर, क्योंकि ये वाली अलामत वो जज़म के तौर पे लेते हैं। ये उस्मानी मुसहफ में बनी हुई होती है। उस्मानी मुसहफ के हिसाब से मैं दोनों चीजें आपको पढ़ा रही हूँ। देखिए ये जीरो बना हुआ है, इस तरह की होती है, और जो ये सिफर इस तरह की बनी हुई होती है, इसको कहते हैं मुस्ततील। अस्सिफरुल मुस्ततीलुल काइम, आप खाली मुस्ततील भी याद कर ले नाम, तो इतना भी काफी है। मुस्तदीर गोल, मुस्ततील बेजवी, ठीक है, ओवल। ये बेजवी शक्ल का खड़ा सिफर होता है, यानी कि यूं करके खड़ा। ये कुछ अलिफात के ऊपर पाया जाता है जो अलिफ के आखिर में होते हैं, इसके बाद आने वाले लफ्ज का पहला हर्फ मुतहर्रिक होता है। यह अलामत इस बात की निशानदेही करती है कि यह अलिफ सिर्फ उस लफ्ज पर वक्फ की सूरत में ही पढ़ा जाएगा, जबकि मिलाकर पढ़ने की सूरत में साकित हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने दूसरी किताब से लिया है, इसलिए डेफिनेशन इस तरह से लिखी है। क़ाला अना खैरुम मिन्हु लाकिन्ना हुवा अल्लाहु रब्बी, समझ आ गई। मुस्ततील क्या होता है, मुस्तदीर क्या होता है, जो गोल सिफर होता है, ठीक है, गोल होगा, सर्कल होगा। और मुस्ततील क्या होता है, जो कि ओवल शेप में होती है। मुस्तदीर के लिए जो जिसके ऊपर लगा हुआ होगा वो बिल्कुल नहीं पढ़ा जाएगा, और जो मुस्ततील जिस पे बना हुआ होगा वो अलिफ वक्फ में पढ़ा जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है आप। उसके अलावा जैसे कवारीरा, जैसे सूरह दहार में कवारीरा था, दोनों में मुस्ततील था या मुस्तदीर था? जो पढ़ा था और एक नहीं पढ़ा था। एक पे मुस्ततील होगा और एक पे मुस्तदीर होगा। ये सूरह दहार की जो अगर हम एग्जाम्पल लें, माँ उतर रही है ये एग्जाम्पल, हाँ, एक पे मुस्ततील और एक पे मुस्तदीर होगा। तो मुस्ततील पहले वाले पर हो रहा था। पहले वाले पर ओवल वाला होगा मुस्ततील, और दूसरे वाले अच्छा, पर जो है वो गोल वाला होगा कि उसको नहीं पढ़ना है आपने, नहीं पढ़ना रहा। पढ़ अच्छा के टीचर दिखाया आप था ये कि पेज वो, जरूर भेजिएगा, तस्वीर, हाँ इस पेज की तस्वीर भेजिएगा। ये मैंने PDF बना के भेजा हुआ है। और मैं आपको बुक का भी जो बुक है ना, वो बुक का पेज ये वाली जो है जिसमें थोड़ी मिस्टेक्स थी और इसमें मिस्टेक्स नहीं है, ये वाली मैं भेज दूंगी। इसका ये ना कि पूरी बुक है, इसका PDF है, और इसके लास्ट पेजेस है, 91 पेज है ये, ठीक है, ये आखिरी के पेज। अगर आप ढूंढेंगे ना, ये देखिए फहरिस्त, तो इसकी आखिर में फहरिस्त है, और ये बिल्कुल आखिरी का पेज है। तो ये आपने याद करने हैं, ठीक है। ये लफ्ज आप इनको पढ़ के बार पढ़ के याद कर लीजिएगा दरमियान से, और ये हो जाएगा। ये वाला चार्ट मैं आपको काट दिया है मैंने, ये नहीं पढ़ना, ठीक है। ये वाला चार्ट ये आपके कंप्लीट हो गए हैं। हरफ ज़गीरा में एक और चीज़ आपको दिखा दूं, हरफ ज़गीरा में पढ़ा चुकी हूँ आपको, पहले भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, है ना। हरफ ज़गीरा जैसे वो जो छोटी या बनी होती है, छोटी वाव बनी हुई होती है, कहाँ चला गया, ये देखिए, ये जो खड़ा अलिफ होता है इसको अलिफ खंजरिया कहते हैं, अलिफुल खंजरिया, ठीक है। और ये छोटी या बनी भी होती है, या छोटा वाव बना हुआ होता है, ये हमारे यहाँ उल्टा पेश बना हुआ होता है, और या खड़ी जेर बनी हुई होती है। कहीं कहीं पे ऐसी या भी बनी हुई होती है, जैसे कि अभी फमा आतानी वाले में बनी हुई होगी, हमारे मुसहफ में भी बनी हुई होगी। ये देखिए, ये नुनजी, उस दिन हम कह रहे थे ना,
ये देखिए ये नून सूरह अंबिया की आयत नंबर 88 है, उसमें है नून जी, ऐसा नून बना हुआ है, ये हरफ सगीर, समझ आ रही? सूरत अंबिया की आयत ये नंबर, नूने कुतनी नहीं है, हाँ ये नूने कुतनी नहीं है, नहीं ये नहीं हर्फ नहीं सगीर नहीं, है। नूने कुतनी आखिर में होता है हर्फ के। अच्छा, इन्होंने खुदने के कायदे में नहीं आ रहा। हाँ ये नहीं है, ये बस राइटिंग स्टाइल है। जैसे यहाँ पर ये वाव है उल्टा पेश की जगह, ये खड़ी जेर की जगह ये वाला है, तो बस ये राइटिंग स्टाइल है, इसका कोई मतलब नहीं है अलग से, ठीक है, या कोई रूल नहीं है ये सारे जो है ना उस्मानी मुसहफ में लिखे हुए होते हैं, और हमारे पास जो पाकिस्तानी मुसहफ है उसमें हमारी ही सहूलत के लिए कुछ चेंजेस की गई, लेकिन असल मुसहफ जो है वो उस्मानी मुसहफ ही है जिसको बाकी रखा गया है, और अच्छा कोई टीचर, चेंजेस नहीं। आपने बताया था जब ये जैसे बड़ी आई लिखा हुआ है तो आपने कहा था ना ये खड़ी जेर की निशानी है, ऐसे ही है? जी जी जी, खड़ी जेर की ठीक है। निशानी है, लेकिन कहीं कहीं पे ये इस तरह से भी आया है, जैसे ये आया यहाँ पर ये खड़ी जेर नहीं है यहाँ पर, ये खाली याद है, ये सिर्फ राइटिंग स्टाइल खूबसूरती के लिए है, ठीक है। नहीं, अगर ऊपर है तो ये खड़ा जबर होगा, फिर ऐसे हाँ ही है? जब ये हा के बाद, ये हाय जमीर के बाद जब आएगा ना तब ये खड़ी जेर की निशानी है, और हा जमीर के बाद वाव आएगा तब ये उल्टा पेश की निशानी, ठीक है। सिला की निशानी, ठीक। बेसिकली सिला हो रहा है यहाँ, ठीक है। जी जी। और किसी का कोई सवाल? ये हमारा कंप्लीट हो गया। टीचर ये नून जी जो है ये नून के ऊपर साकिन है, दूसरे छोटे वाले हाँ नून के जी ऊपर, जी या क्या है? जी, नून साकिन, नून जी पढ़ेंगे ना फिर इसको? इसको इक्फा करके पढ़ेंगे जैसे आप पढ़ते हैं नून जी। जी ठीक है। ये बस खूबसूरती के लिए बना हुआ है, इसको हम देख लेते हैं सूरह अंबिया को। आयत नंबर 88 में। हाँ जी, लेकिन अंबिया, ये कैसे पता चलेगा कहाँ खूबसूरती के लिए और कहाँ रूल के लिए है? इतने सारे रूल्स पढ़े तो हैं आपने, सब याद कर लीजिए। तो ये हमजा के बाद अगर या आएगा तो खड़ी जेर है, और हमजा के बाद अगर वाव आएगा तो उल्टी पेश है। हमजा नहीं, हाय लेकिन जमीर, हमजा नहीं, हाय जमीर, सॉरी हाय जमीर। हाँ और ये जो नून जी है यहाँ क्या रूल आ रहा है, ये तो मेरी समझ कोई में रूल जीम नहीं है, आएगा आगे। कोई रूल नहीं है, अच्छा, बस खूबसूरती के लिए। इसी तरह यू अच्छा, जो में जो दाऊद या है, लिखा हुआ है वो भी, ये जो दाऊद है इसमें जो छोटा सा वाव है ये सिर्फ खूबसूरती के लिए। हाँ जी, ये भी उल्टा तो पेश, हमारे यहाँ मुसहफ में से उल्टा पेश की तरह सिला हो रहा है, यहाँ पे भी सिला नहीं हो रहा है, मीन सॉरी, सिला सिर्फ हाय जमीर में होता है, मतलब ये उल्टा पेश के तौर पे हमारे पास लिखा हुआ होता है वाव के ऊपर उल्टा पेश, लेकिन ये तो हम इस उस्मानी दाऊद मुसहफ को में उल्टा कैसे पेश तो होता पढ़ेंगे? ही नहीं है। पेश पे तो वाव मद्दा हो गया, हाँ उल्टा पेश है। जी, तो हम इस दाऊद को कैसे पढ़ेंगे? दाऊदा, तो खींचेंगे। उल्टा पेश, हाँ जैसे उल्टा पेश वाव को होंठ गोल करके पढ़ेंगे, दाऊदा या पढ़ी दाऊदू। हरकत पढ़ेंगे, तो खड़ी टीचर हरकत ये टू पढ़ेंगे, ये काउंट तक पूछना चाह पढ़िए रही ना? हूँ। जी 2 काउंट तक वाव मद्दा जितना पढ़ेंगे। जी जी। अच्छा सूरह अंबिया जो है वो कौन सी सूरत के आगे पीछे है, बताइएगा। सूरह हज के पास है ना, एक मिनट। हज के सूरह तौहा है उससे पहले, सूरह अंबिया से पहले, और सूरह हज है उसके बाद। 16वां पारा होगा, कहाफ के बाद मरियम तौहा, फिर आएगा 17वां पारा है। ठीक है 17 पर पारा, सूरह कहाफ 16 में खत्म। आयत नंबर 88 सूरह हज से पहले। ये देखें, ये रानू जी, ठीक है, आयत नंबर 88 में नून जी। ठीक है, ये आपकी कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों का टेस्ट जो है वो 28 को स्केड्यूल्ड है, और इंशाल्लाह आपके पास फ्राइडे सैटरडे संडे का टाइम होगा, आराम से आप अपना पेपर कीजिएगा, और ओरल्स जो है वो फिर आप आगे दे दीजिएगा मंडे ट्यूसडे को, ठीक है। मिस ये जो रहमान वाला पेज है इस देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है जालिका के बाद युखविफु अल्लाहु, इस तरह से पढ़ा जाएगा ये? कौन सी आयत नंबर क्या बोल रही है? वो पीडीएफ का जो पेज है ना रहमान जिस पे लिखा है
इसमें नहीं, वो जो PDF थी। पेज नंबर क्या है? ये वाला PDF जो टीचर के पास PDF होती है, हाँ ऊपर आइए, हाँ ये लिखा हुआ है ना नंबर 1 पे देखिए, युखविफु अल्लाहु लिखा हुआ है ये। जी जी जी, इसके ऊपर ये हमजा वसली है ना, ये हमजा वसली के ऊपर यूं स्वाद बना हुआ होता है उस्मानी मुसहफ में। हमारे अच्छा, पास ये हमजा स्वाद बना हुआ है। हाँ तो मैं वही कह रही हूँ कि दरमियान में हमजा वसली आता है तो वो तो साकित हो जाता है। हाँ, लेकिन ये स्वाद है ये। उस्मानी मुसहफ में जो होता है ना वो इस तरह से बना हुआ होता है, और उस्मानी मुसहफ पे देखिए खड़ा जबर कभी इस तरह से भी लिखा हुआ होता है। देखिए ये खड़ा जबर राइटिंग स्टाइल है, इस तरह से बना। हमारे पास तो अल्लाह में खड़ा जबर तशदीद के ऊपर खड़ा जबर ऐसे बना होगा ना। अब यहाँ देखिए रहमान में खड़ा जबर भी है और ये भी है। बेसिकली खड़ा जबर नहीं है, ये अलिफुल खंजरिया जी कहते हैं, रहमान, और ये अलिफ कहलाता है। क्या अलिफ है? अलिफ मकसूरा, छोटा अलिफ। ये है युखफिफुल्लाहु पढ़ेंगे ना, हाँ जी, हमजा वसली है ना, अल्लाह, जी जी जी, हमजा वसली। बिही क्योंकि बढ़िया लगी हुई। जी जी, इबादहु, इबादहु, ये भी इबादहु, दोनों जगह पे सिला हो, क्योंकि माँ सही। कल माँ बाप दोनों तरफ मुतहर्रिक होंगे, इसके भी मुतहर्रिक होंगे आगे, तभी इसी वजह से सिला हो। ठीक है, ये आप लोगों का कंप्लीट ठीक हो है। गया अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों का अल्लाह का शुक्र। और मेरा आप लोगों का इतना ही साथ था। मिस इसका लेक्चर डालेंगी? रिकॉर्डिंग हाँ इंशाल्लाह आज की रिकॉर्डिंग हो रही है, और मैंने कल वाली जो लास्ट हमने क्लास ली थी उसकी भी रिकॉर्डिंग इसी में हो गई है, तो इंशाल्लाह ये मैं रिकॉर्डिंग आपकी डाल दूंगी। मैम मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। बोर्ड का एग्जाम है, आप जिस डेट को बता रही हैं 28 को। कौन है ये? जोहा? जोहा, यस। बेटा पेपर देकर आकर फिर दे दीजिएगा ना 3 दिन है ना। सेकंड टाइम पे, हाँ सेकंड टाइम पे है मेरा बेटा पेपर 20 5 को मैं पेपर Monday पोस्ट तक करूंगी, टाइम है ना मैम, और संडे आपको तक टाइम दे रही हैं। संडे की रात तक टाइम मिलेगा, आराम से कीजिएगा, कर लेंगी ना? ओके जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और वैसे क्या जज़ाकल्लाह। जो लोग एकेडमीज के साथ साथ ही सारे कोर्सेज करते हैं ना, उनका जहन बहुत तेज होते हैं। मेरे पास इससे पहले जो फर्स्ट DTC हुआ था उसमें 2 बच्चियां थी, वो भी मैट्रिक का एग्जाम दे रही थी उस जमाने में, और उन्होंने उसी दौरान जो है वो मुझे ये DTC किया था, और माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा जो है पेपर भी दिया था और बहुत अच्छा पढ़ा भी था और उनकी इंशाल्लाह। मिस मैं भी यही देखती हूँ कि हमारे मुकाबले में जो बच्चे हैं ना वो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, हमें तो बहुत सोचने समझने की जरूरत पड़ती है, फिर कहीं जाके दिमाग में आता है। अभी तो हम रूल्स पढ़ रहे हैं ना इतना ज्यादा, वरना तो आप देखिए छोटे बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो हम सिर्फ उनको कॉपी करवाते हैं और वो आराम से कॉपी कर लेते हैं, हमसे कॉपी नहीं होता। हम पक्के हो गए हैं अपनी जबान में। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही कुछ सीखा, बहुत ही जिसे कहते हैं नॉलेज में इजाफा हुआ, घबराए बहुत बीच में, लेकिन बहुत ही मजा आया पढ़ के, और आपका भी अंदाज बहुत अच्छा था। और जैसे जैसे पढ़ते गए आसान होता गया। वही बात, जो इल्म अल्लाह ने दिया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आमीन। और जैसे आप लोगों ने पढ़ा है मैम टीचर ट्रेनिंग भी तो आप देंगी, वो कोर्स कब कैसे स्टार्ट होगा? सॉरी आप कह रहे थे ना टीचर ट्रेनिंग भी देंगे, आप लोगों को सिखाएंगे भी कि किस तरह पढ़ाते हैं, DTC की ट्रेनिंग होगी, टीचर ट्रेनिंग। टीचर ट्रेनिंग आपको साथ साथ हम देते नहीं रहे, आप जब ग्रुप्स लेते थे तो आप देखती थी कि आपकी टीचर आपको कैसे पढ़ा रही है, आपके सामने लाइव यस होता मैम, वो भी चल रहा था साथ साथ, इसके अलावा लेकिन ये अगर हमें दरमियान आगे स्टूडेंट को पढ़ाना हो। बताती भी रही किस तरह से पढ़ाना। लेकिन मिस हमारी किरात तो भी इतनी अच्छी नहीं है, अभी हमारी किरात तो इतनी अच्छी नहीं है। आपका प्रैक्टिस आपकी बैच 4 के साथ साथ चलती रहेगी ना, आपका जैसे बैच सूरह 4 बकरा पूरी होगी अप्रैल ना, तक जाएगी। हाँ, अप्रैल तक आपकी ये प्रैक्टिस चलती रहेगी, आपने मेहनत नहीं छोड़नी। DTC कंप्लीट हो गया इसका मतलब ये नहीं कि आपने छोड़ देना है। मिस आप हम रूल्स पढ़ते रहेंगे। हाँ, आपने अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है और ज्यादा मेहनत के साथ पढ़ते रहना है। एट द एंड ऑफ द कोर्स जो है वो आप लोगों को हम टीचिंग के लिए ऑफर करेंगे कि आप हमारे यहाँ पे आके फीडबैक्स पे और इस पर आइए, तो मैं उसका टेस्ट लूंगी आप लोगों का। अभी इस सेशन के बाद भी, इवन DTC के बाद भी हम इसमें भी टेस्ट लेते हैं, अगर हमारे पास जरूरत होती है तो फिर हम आपको DTC के बाद भी रख लेते हैं, लेकिन अभी मेरे ख्याल है अभी हम लोगों को जरूरत नहीं है। अभी नया बैच शुरू हुआ है हमारा और उसमें कंप्लीट हो गई हैं टीचर्स, तो आप लोग आराम से हम भी थोड़ा और पॉलिश हो जाए, अभी तो हाँ बहुत जी, कमी है। सूरत बकरा जो है वो आपकी जैसे जैसे पूरी कंप्लीट होती जाएगी ना, देखें
कोई भी इंसान ना आपको कुछ भी घोल के नहीं पिला सकता. जो चीजें जहां तक भी पॉसिबल हो सकती थी हमने और मेरी टीम ने आप लोगों को पढ़ाया, आप लोगों के साथ मेहनत की. अब आगे आप लोगों ने अपने आप को पॉलिश खुद करना है. जितनी ज्यादा लिसनिंग करेंगे ना, जितना ज्यादा सुनेंगे, उतना ज्यादा अच्छा आपकी किरात में भी फर्क आएगा. सुने और पढ़ें, ये जरूरी है. वरना अगर हम सुनेंगे नहीं, खाली पढ़ते जाएंगे ना, तो फिर गलतियां आना शुरू हो जाएंगी और आपको अपनी गलतियां महसूस नहीं होंगी. नहीं इंशाल्लाह करेंगे, जब 3 महीने लगाए तो उसको निभाएंगे इंशाल्लाह ताला. चलिए, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा और दुआ करनी है मुझे. लेकिन अभी टाइम मीटिंग दोबारा से रिकनेक्ट कर लेते हैं, फिर मैं दुआ कर लेती हूँ. रिकनेक्ट कर लें.